हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर से क्वेश्चंस फॉर नीट चौका नंबर 8 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन है, उसके बाद उनके सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? चार्ज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, a charge moving in a circular orbit, a charge at rest, none of these. Question number 2, match the column 1 to column 2 electromagnetic radiation, order of the frequency and range. Microwave 5 into 10 to the power 16 to 8 into 10 to the power 14 hertz. Ultraviolet rays 10 to the power 9 to 5 into 10 to the power 5. Gamma rays 3 into 10 to the power 11 to 1 into 10 to the power 9. Radio waves 5 into 10 to the power 22 to 3 into 10 to the power 18 hertz. जो मैचिंग है 1 2 3 4, ऑप्शन ए सी डी बी, बी डी बी ए सी ए डी बी, ए बी सी डी. क्वेश्चन नंबर 3, the wavelength of electromagnetic waves of frequency 5 into 10 to the power 19 hertz in free space is 0.06 meter, 0.06 angstrom, 5 into 10 to the power 19 millimeter, 3 into 10 to the power minus 8 meter. Question 4, an observer is 1.8 meter from an isotropic point light source whose power is 250 watt. The RMS value of electric field at the position of observer is 60.7 volt per meter, 152.3 volt per meter, 48.1 volt per meter, 1.6 into 10 to the power minus 7 volt per meter. अब इनके सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 1, which of the following can act as a source of electromagnetic waves? A charge moving with a constant velocity, a charge moving in a circular orbit, a charge at rest, none of these. So electromagnetic waves, for generation of electromagnetic waves, source of EM waves, charge moving with एक्सेलरेशन. ये कंडीशन होती है, जो चार्ज मूव करते हैं वो एक्सेलरेशन के साथ मूव करना चाहिए, तभी वो ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा. तो जो फर्स्ट ऑप्शन, चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, नो एक्सेलरेशन, नो ईएम वेव, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो कोई ईएम वेव जनरेट नहीं होगी. चार्ज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, चार्ज सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, इसकी स्पीड भले ही कांस्टेंट हो लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. इट मीन्स दिस इज एक्सेलरेटेड. Charge is accelerated, hence this will produce EM waves. Question number 2, match the column 1 to column 2 electromagnetic radiation, order of frequency or range. Microwaves 5 into 10 to the power 16 into 8 into 10 to the power 14. Ultraviolet rays 10 to the power 9 to 5 into 10 to the power 15. Gamma rays 3 into 10 to the power 11 to 1 into 10 to the power 9. Radio waves 5 into 10 to the power 22 to 3 into 10 to the power 18. Option A C D B, D B A C, C A D B, A B C D.
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएशन है उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁵ से 10⁹ तक। माइक्रोवेव 1 × 10⁹ to 3 × 10⁻11। इंफ्रारेड 3 × 10⁻11 to 4 × 10⁻14। फिर विजिबल 4 × 10⁻14 to 8 × 10⁻14। अल्ट्रावायलेट 8 × 10⁻14 to 5 × 10⁻16। और एक्स-रे 1 × 10⁻16 to 3 × 10⁻21। गामा रेज की फ्रीक्वेंसी होती है 3.10⁻18 to 5 × 10⁻22। इसको अगर मैच करें तो माइक्रोवेव, सबसे पहले माइक्रोवेव 1 × 10⁹ to 3 × 10⁻11। 1 × 10⁹ to, so C is this C। और नेक्स्ट अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट रेज की रेंज होती है 8 × 10⁻14 से 5 × 10⁻16। दिस इज ए। नेक्स्ट है गामा रेज, गामा रेज की 3 × 10⁻18 to 5 × 10⁻22। this D। and last the radio wave, radio wave is 5 × 10⁵ to 10⁹ this B। correct option is C। Question number 3. The wavelength of electromagnetic wave of frequency 5 × 10⁻19 Hz in free space is 0.06 meter, 0.06 angstrom, 5 × 10⁻19 mm, 3 × 10⁻−8 meter. The speed of radio wave C is equal to mu into lambda, frequency into lambda. Lambda is mu c by the speed of radio wave in free space, speed of light 3 × 10⁸ जो स्पीड होती है रेडियो वेव की वो लाइट स्पीड के इक्वल होती है। तो इन फ्री स्पेस स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी है 5 × 10⁻19। 0.6 × 10⁻11 और 0.06 × 10⁻10 मीटर और 0.06 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम is equal to 10⁻10 मीटर। तो जो लैम्डा की वैल्यू है वेवलेंथ होगी वो 0.06 एंगस्ट्रॉम। बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4. An observer is 1.8 meter from an isotropic point light source whose power is 250 watt. The RMS value of electric field at the position of observer is 60.7, 152.3, 48.1, 1.6 × 10⁻⁻7 वोल्ट पर मीटर। एक पॉइंट सोर्स और ऑब्जर्वर इज 1.8 मीटर अवे।
This is source and power is 250 watt. यहाँ पे अगर हम ये जो पावर है इसकी इंटेंसिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इन स्फेरिकल फॉर्म. दिस इज ऑब्जर्वर. तो इंटेंसिटी एट ऑब्जर्वर आई, जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा S 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज R, और 4 पाई इंटू 1.8 का स्क्वायर. तो इंटेंसिटी होगी P बाई S 250 बाई 4 पाई इंटू 1.8 का स्क्वायर. ये इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी. तो आई होगा इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड. और क्योंकि ड्यू टू इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2. तो इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आई बाई 2. और इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है 1/2 एप्सिलॉन 0, अगर उसकी ERMS वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की है, ERMS स्क्वायर इंटू C. दिस इज आई बाई 2. जो RMS वैल्यू पूछ रहा है 2 से 2 क्रॉस हो गया. आई की वैल्यू है 250 बाई 4 पाई इंटू 1.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू ERMS स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8. और ERMS स्क्वायर इज 250 बाई 4 पाई इंटू 1.8 का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू 3 इन 10 टू द पावर 8. टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 250 बाई 1.8 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8. और दिस इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 250 बाई 1.8 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8. 3 3 is 9. 3 into 250 into 10 to the power 9 by 1.8 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 8. ERMS स्क्वायर. और 3 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर 2 बाई 1.8 का स्क्वायर. बोथ साइड रूट अगर हम ले दें तो 3 इंटू 250 इंटू 10 टू द पावर 2 बाई 1.8 का स्क्वायर का रूट, ये आ जाता है √3 इंटू 5
इंटू 10 बाई 1.8, इसका डेसिमल अगर हम हटा दें ऊपर 10 से मल्टीप्लाई 9 5 250 रूट 3 बाई 9, ये RMS 1.732 250 433 बाई 9 और 48.1 वोल्ट पर मीटर। जो ERMS वैल्यू है उसकी वैल्यू आ जाती है 48.1 वोल्ट पर मीटर। 48.1 वोल्ट पर मीटर, C is correct option.